جی السلام علیکم، میں ہوں کاشف روبی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 24 پوائنٹ نیوز پروگرام کی حالات کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں۔ اس وقت ہر زبان پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جلسے کا جو ہے وہ نام ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گا کل کے ہونے والے اس جلسے کے حوالے سے، کہ لاہور میں جلسے کا مکمل احوال جو ہے میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ حکومت کیا کچھ کرتی رہی، کنٹینر تھے ہر جگہ، اور عماد اظہر بیرسٹر کوہر کی گرفتاریاں، اور اس کے بعد رہائی اور حالات خراب، روڈوں کو کس طرح بلاک کیا گیا، اور حکومت جو ہے وہ کیا کچھ کرتی رہی ہے۔ دھولا لاہور پہنچ گیا لیکن دلہن والی غائب۔ تو یہ تمام چیزیں پنجاب پولیس نے بڑے سرپرائز دیے کل، اور مطلب اپنی جو ہے اپنے سربراہوں کو جو ہے خوش کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہیں ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے بھی یہ جلسہ جو ہے کامیاب نہ ہو سکے۔ آج کے ایجنڈے میں تمام چیزیں شامل ہیں، اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ 16 ماہ بعد جو ہے جلسہ جو ہے وہ لاہور میں جو ہے کل کی تاریخ پہ ہوا ہے۔ 21 ستمبر 2024 دن تھا ہفتے کا، اور جو وینیو دیا گیا تھا سب سے پہلے جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے اعلان کیا گیا تھا مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر کینسل کر دیا گیا، وہاں کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ بھی عدالت کے کہنے پہ، ہائی کورٹ کے جج فاروق حیدر کے کہنے پہ جو ہے ڈپٹی کمشنر نے جو ہے وہ اجازت دی ہے، اور وہ بھی کانا منڈی، جو کہ ایک بالکل لاہور سے ہٹ کے جگہ ہے جہاں پر پہنچنا ناممکن تھا، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے کارکن جو تھے وہ جوش میں تھے، جذبے تھے اس کے اندر، اور وہ وہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر جلسے کو جو ہے کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جانب ہم بات کریں گے کہ جو ایک دن پہلے جب ہم لوگوں نے 30 ستمبر 2024 بروز جمعہ جب ہم نے یادگار گراؤنڈ کا وزٹ کیا، تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ چاروں طرف سے جو ہے وہ اسے جو ہے بلاک کر دیا گیا ہے، تالے لگا دیے گئے ہیں، لوگوں کو باہر نکال دیا گیا ہے، یہاں تک کہ میڈیا پرسنس کو بھی اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ پھر مداخلت پر جو ہے میڈیا کے احتجاج پر جو ہے انہیں اندر جانے کی اجازت دی گئی، لیکن وہاں پر بھی صورتحال کبھی ناساز نظر آئی، کیونکہ جب بھی ویلوگس کر رہے تھے یا ہم لوگ انٹرویوز کر رہے تھے، تو لوگوں نے اگر پی ٹی آئی کے نعرے لگائے تو فوراً مطلب اتنی جلدی رسپانس جو ہے کوئی بھی نہیں کرتا۔ پنجاب پولیس کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا کہ انہوں نے فوراً رسپانس کیا اور اس بندے کو فوراً اٹھا کر جو ہے غائب کیا۔ یہ پنجاب پولیس کرتی ہوئی نظر آئی ہمیں۔ اور دوسری جانب اگر ہم آپ کو بولیں کہ 16 ماہ بعد جلسہ کرنے جب یہ گراؤنڈ میں پہنچے ہیں بغیر خان کے، بغیر بانی پی ٹی آئی کے، تو کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، لیکن حکومت تو ہے وہ کچھ اور بیان کر رہی ہے، کیونکہ حکومت نے اپنی نااہلی، ناکامی اس کو چھپانا بھی ہے، اور ٹی وی پر بیٹھ کے ان کے وزیر جو ہیں وہ ڈفرینٹ پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں کہ جی 3300 لوگ اندر تھے، اور 150 لوگ تھے، 167 لوگ تھے، 160 لوگ تھے، 65 لوگ تھے۔ یہ تمام جو ہے ایسے لگتا تھا کہ کل جو ہے یہ وزیر جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ صرف اور صرف اپنا گنتی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ گن رہے تھے کہ ایک ایک بندے کو گنو، کتنے بندے آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، اور کتنی پولیس ہے، کتنے میڈیا پرسنس ہیں، کتنے جو ہیں وہ الرٹ فورس کے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس وقت جو ہے نا، یہ منسٹری جو ہے وہ خود منسٹر جو ہے یہ گن رہا تھا وہاں بیٹھ کے۔ یہ جو محترمہ ہیں ہماری عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وزیر اطلاعات ہیں، وہ بھی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اتنے 100 بندے ادھر سے گئے ہیں، اتنے 100 بندے ادھر سے گئے ہیں، اور جلسے میں 3000 کے قریب بندہ بھی پورا نہیں تھا۔ تو یہ صرف اور صرف کل جو ہے نا ان کا کام تھا صرف یہ گنتی کرنا۔ تو اگر تو اس حکومت کو جو ہے وہ خوف تھا پی ٹی آئی کے جلسے سے، تو پھر اجازت ہی نہ دیتے، لیکن رات کے آخری پہر جو ہے اسے اجازت دی۔ رات کو 9:30 بجے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور ایس او پیز 44 ایس او پیز پہ جو ہے دستخط ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے جا کر جب یہ جلسے کی اجازت دی گئی، تو جب جلسہ گاہ میں سامان پہنچایا گیا جلسے کے لیے، تو وہاں پر پولیس نے دھاوا بولا، اور وہاں سے کرسیاں اور تقریباً 6 کے قریب کنٹینر اٹھا کے کانا تھانے میں لے گئے۔ وہاں پر صبح 6 بجے تک انہوں نے وہاں پہ کوئی اسٹیج، کوئی کرسی لگنے نہیں دی۔ اس کے بعد جو ہے مداخلت کی گئی، لوگ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے اس پہ احتجاج بھی کیا، اور یہ بتایا کہ ہم عدالت جائیں گے اس میں۔ تو وہاں پر پھر اجازت دی گئی، تو ایک ٹرک کے اوپر کنٹینر لگا کر جو ہے وہ جلسے کو جو ہے کرنے کی، اور دوسری طرف جو ہے
इरादा किया गया कि अब एक कंटेनर लगा के जो है हम जलसा करते हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि जो लाइट्स हैं वो लगाने नहीं दी गई कि जी लाइट आपने नहीं लगानी, 6 बजे आपने जलसा ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये वलीमा था अली अमीन गड्डापुर साहब का, क्योंकि अली अमीन गड्डापुर बारात लेकर आ रहे थे और लाहौर में जो है उनका ससुराल था, तो यहाँ पर उन्होंने जो है खिताब भी करना था, लेकिन और इस वक्त जो है पंजाब पुलिस ने जो है वो लाइट्स भी लगाने नहीं दी। उसके बाद जब हम जलसे से बराह रास्त कवरेज कर रहे थे तो हमने देखा कि लोग वहाँ पर सुबह से ही आना शुरू हो गए थे और लोग ढूंढ ढूंढ कर जो है वहाँ पर पहुँच रहे थे, रुकावटें दूर करके, और हमने वहाँ पर बहुत से इंटरव्यूज़ किए। और ये हुकूमत के दावे कि जी आवाम ने मुस्तैद कर दिया है PTI को, तो ये कहना कब से वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त जब हम लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं, वो जब इंटरव्यूज़ आपके सामने एडिट होकर आएंगे तो वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आवाम ने किस हद तक जो है इस हुकूमत को जो है आड़े हाथों लिया है। इस हुकूमत की जो है अपनी साख जो है वो नुकसान में है इस वक्त। और PTI का अगर जलसा था तो हुकूमत को डर किस चीज़ का था, क्योंकि अगर 3-4 हज़ार बंदे थे तो उससे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना लाहौर को कट आउट कर दिया, उस कंटेनर से कंटेनर थे, हमने खुद रिपोर्ट की है। इस वक्त हम बताते हैं आपको कि शाकापुर के ऊपर कंटेनर्स थे, उसके अलावा जो है, और ये कंटेनर्स बुध वाले दिन रात से ही पकड़े हुए थे। ये भी हम आपको यहाँ पे बताते चले कि अगर तो ये 3-4 हज़ार लोगों का जलसा था तो फिर आपको इतनी परेशानी, इतना TV पर आके और वसाहत देने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मतलब सोचने की बात है कि अगर तो जलसा नाकाम था तो फिर आप घर बैठ जाए आराम से, आप कहीं करने दें PTI को जो मर्ज़ी करती है, लेकिन आप लोगों ने बार बार जो है एक वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती थी, दूसरे की शुरू होती थी, और सिर्फ यही चीज़ कि PTI का जलसा नाकाम हो गया, PTI का। अरे अल्लाह के बंदो, जो इस वक्त जो है शेख रशीद की वो बात मुझे याद आती है कि उन्होंने कहा था कि इसमें बच्चे के पास क्लाशनकोव मौजूद है और वो क्लाशनकोव मोबाइल फ़ोन है, और आप लोगों ने इंटरनेट बंद किया, लेकिन इंटरनेट बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर्विसेज स्लो की गई, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और लोग एक दूसरे को पैगाम भेजते रहे, लोग एक दूसरे को बताते रहे, लोकेशन शेयर करते रहे। दूसरी जानिब जो है जलसा भरपूर अंदाज में, मैं तो ये कहूँगा कि जलसा जो है वो एक कामयाब जलसा था, और वो इस हुकूमत की जो है नाकामी का मुँह बोल का सबूत था। अच्छा, जब 6 बजे तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं जलसे को, तो आप 2 घंटे और भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये क्या बात हुई कि आप 6 बजे बस आपने लाइटें बंद कर दी वहाँ DJ के पास। मेरे सामने, मैं वहाँ मौजूद था उस वक्त जब DJ के पास जो है वो तकरीबन 8 से 10 पुलिस वाले आए और लीड्स खींच ली और उन्हें बंद करने का कहा, और उन्हें का ऐलान कर दें और बंद कर दें सारी चीज़ें। अब ना आपने कोई साउंड चलाना है, ना ही आपने कोई माइक को एक्सेस देनी है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर होती रही हैं। वहाँ पे लोग इश्तिहार जो है इश्तिहार में भी आ रहे थे, लेकिन जो है वहाँ की क़यादत ने, PTI की क़यादत ने उन्हें मना किया। दूसरी तरफ जब स्टेज के ऊपर पुलिस वाले चढ़े, एक SP साहब आए, उन्होंने तमाम लोगों को नीचे उतारने के लिए कहा, तो पुलिस वाले ऊपर चढ़े। वहाँ पे ये भी रिपोर्ट हुआ है कि अलीमा खान साहिबा को भी धक्के दिए गए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब को भी धक्के दिए गए हैं, और इस तरीके से उन लोगों को ज़बरदस्ती उतारा गया, और बैरिस्टर गौहर साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। और जब उन्होंने पुलिस ने उनको काबू किया तो आवाम वहाँ पे बिखर गई। आवाम ने वहाँ पर जो है नारे लगाने शुरू कर दिए, आवाम ने शोर शराबा शुरू कर दिया, जिससे पुलिस वाले पीछे हट गए और उन्हें जाने दिया गया, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आवाम को पुरअमन रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कदम उठाएँ, एहतजाज करें, ताकि ये इनको एक मौका मिल सके, तो हमने इनको मौका नहीं देना। हमने पुरअमन एहतजाज के तौर पे हम एहतजाज करेंगे, लेकिन हमने पुरअमन जलसा किया है, एक गमला भी नहीं तोड़ा। लेकिन ये लोग समझते हैं कि ये PTI जो है वो दहशतगर्द जमात है, क्योंकि कल TV पर बैठ के इनके मिनिस्टर भी सारा दिन यही कहते रहे कि जी दहशतगर्द जमात है। लेकिन एक याद रखिएगा कि ये दहशतगर्द जमात अगर कल इक़्तिदार के अंदर आ गई तो फिर जो है आप लोगों को जब जलसा करना होगा तो आप लोगों के दिल पर क्या बीतेगी जब आप लोगों को कहा जाएगा कि आपने जलसा जो है 2 बजे शुरू करके और 5 बजे ख़त्म कर देना है। क्योंकि जो नून लीग के जितने भी जलसे थे इस वक्त तक, उस तमाम जलसों के अंदर नवाज़ शरीफ साहब जब जाती उम्रा से निकलते थे, जब उन्हें पता चलता था कि जी अब मेरे जो किराए पे लाए हुए लोग हैं उन्होंने भर दिया है, ग्राउंड भर दिया है, तो मैं अब जाऊंगा, और उससे पहले वो घर से नहीं निकलते थे। लेकिन हम यहाँ पर इतना भी बता दें कि ये तीनों जमातें, जितना क्राउड इस वक्त PTI ने जो है बग़ैर इमरान खान के काना में एक दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है जमा करके दिखा दिया। अगर ये तीनों जमातें जो हैं वो 15 दिन के नोटिस पे भी इतनी आवाम जमा कर लें ग्राउंड में किसी भी,
तो हम मानेंगे इतनी कभी भी क्राउड नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होते हैं बिरयानी के चक्कर के अंदर जो लोग आए हुए होते हैं वो होते हैं। दूसरी जानिब हम बताएं कि लाहौर जलसा कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये तो कब तक वक्त है कहना, क्योंकि जलसा कामयाब है। हमारी तरफ से तो जलसा कामयाब था। लाइटें बंद करना और किस तरीके से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, चेहरे इनके लटके हुए थे, चेहरे पे एक मसनूई मुस्कुराहट थी इनके कि जी हमने जो है वो कामयाब जलसा जो है वो किया है, जलसा नहीं होने दिया हमने। अगर आप लोगों को इतना ही कॉन्फिडेंस था कि ये जलसा कामयाब नहीं होगा तो आप लोगों ने हर जगह कंटेनर्स क्यों लगाए, हर जगह से रोड बंद किए, हर जगह से लोगों को आने नहीं दिया गया। वो फुटेज अपनी मर्ज़ी से बनाई गई जो दिखाई गई कि जी ये फुटेजें लाहौर शहर की, लाहौर बिल्कुल चलता फिरता रहा, कोई किसी को जलसे का पता ही नहीं था। ये चीज़ें, ये कहना है वज़ीरों का। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बात बताता चलूँ कि हमने आम लोगों के हमने जो है राय ली है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आम लोगों ने बताया है कि हमें ना नून लीग से कोई लेना देना है, ना हमें पीटीआई से कोई लेना देना है, लेकिन हम शहरी हैं, हमें अपने कामों के लिए निकलना है। लेकिन हर जगह ट्रैफिक, हर जगह पुलिस, हर जगह पे सिक्योरिटी, हर जगह पे जो है वो कंटेनर्स लगा के बंद किया गया है। हमारे अपने जो मतलब मेहमान हैं वो बाहर फंसे हुए हैं, उनको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। हमने कोई शहर से बाहर जाना है तो हमारे लिए प्रॉब्लम। ये वो लोग हैं जो कि जिनका पीटीआई से या नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हम शहरी हैं। हम शहरियों को जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने बताया कि ये हुकूमत गलत कर रही है, अगर एक पार्टी जलसा करना चाहती है तो उसे जलसे करने दिया जाए। आज से 2 साल पहले तक तो ये सियासत थी ही नहीं कि कोई जलसा जुलूस हो तो उसके लिए कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया जाए, उनको एक रूट दे दिया जाए, उनको टाइम दे दिया जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के लिए है और कल को ये हुकूमत के लिए भी वबाल जान बनेगा जब ये अपोजिशन में होगी या ये हुकूमत से बाहर होगी। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि कल के जलसे के अंदर बड़ी शख्सियात ने जो है एंट्री दी थी और अमाद अज़हर, नईम पंजोता साहब जो हैं वो वहाँ मौजूद थे। और सनम जावेद के बल्कि वालिद को जो है गिरफ़्तार करके कैद जेल में जो है पता एयरपोर्ट लखपत जेल में जो है वो इस वक्त रखा हुआ है और उन पर पर्चा है। और इस तरीके से सनम जावेद को हरासा किया गया है। दूसरी जानिब बताएं कि छापे थे हर जगह। आलिया हमज़ा पहुंची एक बड़े काफ़िले के साथ, सरताज गुल एक बहुत बड़े काफ़िले के साथ पहुंची थी, शाहाना गुलजार वहाँ पर मौजूद थी, रेहाना डार साहिबा जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को दावा किया कि उन्हें हराया है, लेकिन ख्वाजा आसिफ जाली 47 से जो है इक़्तिदार के अंदर आए हैं, उन्होंने वो भी वहाँ पे मौजूद थी। और उमर डार मौजूद थे, उस्मान डार मौजूद थे। वहाँ पर तमाम लोग वहाँ पर जलसा इक़्तिदार में मौजूद थे और उनका जोश व वलवला जो है वो देखने के काबिल था। लतीफ़ कोसा साहब जो है, इसके अलावा जो है जमशेद दस्ती साहब, ये तमाम लोग जो है स्टेज पे मौजूद थे और इन्होंने खिताब भी किया, लोगों को इमरान खान साहब का पैगाम भी पहुँचाया। लेकिन हुकूमत जो दावे कर रही है कि ये तमाम जो है झूठे हैं, कुर्सियाँ खाली पड़ी थी और सब कुछ हम वहाँ पे मौजूद थे। आप झूठ किससे कह रहे हैं? अगर आप अपनी हार तस्लीम नहीं कर सकते तो कम से कम आप झूठ तो ना बोलें। मतलब आप इतना झूठ बोल रहे हैं मुसलमान होकर और इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के भी कि जी 3000 लोग थे और 4000 लोग थे, 5000 लोग थे, 100 लोग था, 200 लोग बनाना था। तो इस तरीके के जो है वो सियासत जो है वो आपकी सियासत दफल होती जा रही है, लोग आपसे नफ़रत करते जा रहे हैं। इस वक्त नफ़रत आप बढ़ा रहे हैं पीटीआई को, तो आप खुद जो है वो जो है नंबर 1 पार्टी बनाने में आपका किरदार सबसे अहम है, क्योंकि इस वक्त नून लीग ही है जो कि पीटीआई को इतना फेमस कर रही है। वरना पीटीआई अगर काम अंदर था तो पीटीआई इतने कामयाब जलसे नहीं कर सकती थी। लेकिन इन लोगों ने जो कंटेनर्स लगा लोगों को उठा, हमने खुद देखा है कि जलसे से एक रात पहले किस तरीके से गुलबर्ग के अंदर कार्रवाई की गई और लोगों को उठाया गया, उनके ऊपर शेलिंग की गई। उसके बाद जो है वहाँ पे लोगों का एहतजाज भी हुआ और किस तरह से घरों पे छापे मारे गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और पुलिस इन एक्शन नज़र आई है 24 घंटों के अंदर। और बल्कि हमने खुद रिपोर्ट किया, हम ग्राउंड मौजूद थे, ग्राउंड पर मौजूद थे जब हमने देखा है कि लोगों को नारे लगाने के ऊपर यादगार में से उठाया गया है और उनको शिफ्ट किया गया है कहीं पर भी। एक सीनियर सिटीज़न थे हमारे साथ वहाँ पर, तारिक अब्बासी साहब जो हैं वो हर जलसे में पीटीआई के होते हैं, उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू किया था यादगार के गेट के ऊपर। तो उसके बाद उनको फ़ौरन जो है अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें ले गए, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उनको रिहा
سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جی مجھے انہوں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ جی آپ سینئر سٹیزن ہیں تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ آئندہ ایسی جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے بات نہیں کریں گے. لہٰذا یہ تمام پولیس کہتی رہی وہاں لوگوں کو کہ آپ نے پی ٹی آئی کا نعرہ نہیں لگانا ہے, پی ٹی آئی کو روکنا ہے. تو پی ٹی آئی کو روک کے جو ہے کیا کیا ان لوگوں نے کچھ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ صرف جلسوں میں کبوتر اڑاتی رہی ہے, لیکن لاہور کے اس جلسے نے نون لیگ کے طوطے اڑا دیے ہیں. اور اس وقت حکومت بڑی پریشان ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہاں پہ ہم نے ہر طرح سے روک لیا ہے, ہر طریقے سے کور کر لیا ہے, اجازت دینے کے باوجود کنٹینرز لگا کے لوگوں کو چھاپے مار کے ان کو اٹھانے کے بعد, ان کو گرفتاریاں کرنے کے بعد, ان کو ٹارچر کرنے کے بعد بھی اتنا کامیاب جلسہ کرنا یہ تحریک انصاف ہی کر سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں پھر آپ کے ساتھ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.